Good morning, everybody. Now let's see how to construct an ogive, which is also called ogive. So we will see how it is constructed. We will see how it is constructed, right? Our topic is ogive, and I have told you in previous class that there will be a X type of diagram in case of ogive. X type of diagram will be drawn in case of ogive or ogive. Okay, I am taking the same value which we have taking the value in less than, we have written 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80, and last was 100. Okay, last was 100. Now next, the frequency of this less than is 10. It is called cumulative frequency. It is called CF, not F. It is not frequency. When we convert the original class interval into less than and more than classes, then we do not write frequency. Rather, it is called cumulative frequency. So it was 10, 30, next was 70, next was 90, and last was 100. Okay? In more than class, we saw 0 था, फिर 20 था, 60 था, 40 था, 60 था और लास्ट में 80 था. ठीक है, तुम लोग अपने कॉपी में सेम वैल्यू देख लो. इसके बाद फिर CF, cumulative frequency. ठीक है, cumulative frequency value was 100. And do you know how we have found the values of cumulative frequency? ये कल के क्लास में मैंने बताया था ना अश्विन, कल के क्लास में कि वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने बता दिया था. तो वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मेरा टारगेट है आज इस चैप्टर को खत्म करने का. Today we will complete this chapter because only one diagram is left, that is pie chart, that we will do in this class only. ठीक है, 100 हो गया, 90 हो गया, इसके बाद 70, 30, 10, 70, 30, 10. ठीक है, अब आ जाओ कि हम लोग इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे. तो इसका डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक x and y axis, ये हो गया y, ये हो गया x. ठीक है, थोड़ा सा वैसे ऊपर करो तक तुम लोग को दिखाई पड़े कि मैम कहाँ लिख रही हैं ये वैल्यू. ठीक है, सब दिखना चाहिए. ये 20 वाला भी दिखना चाहिए, ये 20 वाला भी दिखना चाहिए, ये भी दिखना चाहिए, ये भी दिखना चाहिए, ये भी दिखना चाहिए और डायग्राम तो खैर दिखना ही चाहिए. चल ये हमने ले लिया. अब ध्यान से सुनो. लेस देन एंड मोर देन are shown on x-axis. Are shown on x-axis. ठीक है, तो लास्ट वैल्यू जो है वो 100 है. लास्ट इज 100, इट इज 80. So I will take the gap of 10, 10, 10 between all the values. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे 0 लिया, 20. ठीक है, ठीक है, 20, 40, 60, 80, ये मैंने ऐसे गैप ले लिया. अब इसके बाद आ जाएगा CF. तो CF में लास्ट 100 है, CF में 1 सेकंड, लास्ट 100. तो यहाँ पर भी मैं 10 10 का गैप ही लूंगी. क्या मैं यहाँ पे 10 10 का गैप लूंगी? 20 नहीं, 10 का गैप लेने से पता है क्या फायदा है? We will get 10, we will get 40, we will get 70. Every value can be depicted very easily. तो यहाँ पर मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, लास्ट इज 100. ठीक है, लास्ट इज 100. अब देखो यहाँ पर 20 के सामने 10, 20 के सामने 10. ठीक है, 20 के सामने 10, 20 के सामने 10. यहाँ पर हो गया, इसके सामने 10 हो गया. 40 के सामने 30, 40 के सामने 30, 30, 30, 30, यहाँ पर हो गया 30. ठीक है, 60 के सामने 70, 60 के सामने 70, 70, 70, 70, यहाँ पर हो गया. 80 के सामने 90, 80 के सामने 90. तो 80 के सामने 90, 90, 90, 90,
सेकंड लास्ट, ठीक है। एंड लास्ट इज 100 के सामने 100, तो ये 100 और ये लास्ट, ठीक है। नाउ जॉइन ऑल द डॉट्स with free hand, not with a scale. Join all the values or dots with the help of a free hand. ऐसे करके मैंने इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ठीक है। It is called less than. It is called less than. Less than कर रहा, ठीक है। अब आ जाओ more than की तरफ, more than 0 to 100. 100, ठीक है। 20 के सामने 90, 20 20 20 20 90, 40 के सामने 70, 40 40 40 40 70 के सामने 7, यहाँ पर 40, 60 के सामने 40, 60 60 60 60 40, यहाँ पर हो गया 80 के सामने 10, 80 80 80 10, यहाँ पर आ गया। Now join all the dots once again with free hand, and it is called more than. It is called more than. ठीक है, it is called more than. Can you see it very clearly on your screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको बिल्कुल clearly Yes, दिख रहा है? ma'am. क्या बन गया? Yes, ma'am. It is called ogive. Ogive या ओजाई जो भी बोलो, ठीक है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, the point where these two curves intersect, the point where these two curves intersect, if from that point you will draw a straight line and fall on y-axis, the value where the straight line is falling upon, that value is called median. ध्यान से देखो, मैंने एक स्केल लिया, दिस इज अ स्केल फॉर पीस, ठीक है, ये मेरे लिए स्केल है। मैंने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर भी डॉट बना दिया, ठीक है। अब मैंने ऐसे करके एक स्केल लिया and I have drawn a straight line with the help of the scale, ठीक है। ये ऐसे करके आ गया। The value where this line is falling on, that value is called median. That value is called median. Okay, and it is given in your syllabus. We will see how to find arithmetic mean. We will see how to find Ishika is late. We will see how to find mean. We will see how to find median. We will calculate how to find mode. Mean, median, mode. Mean, median, mode is our next topic, because it is given in the next chapter, in the 5th chapter, ठीक है। 5th chapter में mean है, median है, mode है, सारा कुछ। अभी इस chapter में मैंने तुम लोगों को बता दिया, मुझे तो कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला है L1 plus F1 minus F0 divided by 2 into F1 minus F0 into F2 into Y, ये तो फॉर्मूला है, that we will see in 6th chapter, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी आता है कि मीडियन न्यूमेरिकली के अलावा डायग्रामेटिकली ढूंढो, बताओ क्या होगा। डायग्रामेटिकली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब लोग समझ में तो आएगा नहीं, तो बच्चे को क्या लगेगा कि अरे न्यूमेरिकल है ये, तो असल न्यूमेरिकल से फाइंड आउट करते हैं, डायग्राम से कैसे फाइंड आउट करते हैं मीडियन? तो डायग्राम से फाइंड आउट करते हैं मीडियन ऐसे, with the help of this diagram, with the help of Ogive. Ogive. with the help of ogive we find out median, ठीक है। चलो, क्या ये तुम्हें समझ में आया कि कैसे ड्रॉ करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, मैंने कल ये बता दिया था कि अगर वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो तुम उसको लेस देन में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसका CF कैसे लिखोगे, मोर देन में कैसे कन्वर्ट करोगे और उसका CF कैसे लिखोगे, ठीक है। अच्छा, और ये जो लेस देन और मोर देन होता है, जो कास्ट इंटरवल होता है उसको एक्स एक्सिस में, और जो CF होता है ये CF इन दोनों के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को देख करके फाइनली यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट विल बी द गैप्स बिटवीन ऑल द वैल्यूज। So after observing the minimum and the maximum,
cumulative frequency, I have decided that I should take the gap of 10-10 every time. ठीक है? तुम यहाँ पे 20 का गैप भी ले सकते हो, गलत नहीं है, बट ऑगिव फिर से वेरी स्मॉल, छोटू सा बनता ऑगिव, एकदम नन्ना मुन्ना ऑगिव बनता, ठीक है? तो नन्ना मुन्ना से एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मिल पाएगा, है ना? तो इसीलिए कोशिश करो कि मैक्सिमम वैल्यू उसमें दिखे। अगर मैं 5 लेती तो यहाँ पर 10 की बजाय तो 20 वैल्यू होता ना, 20 वैल्यू, बोलो अश्विनी, 20 वैल्यू तो होता। तो आप Yes, ma'am. तो ना बहुत टॉल, दोनों नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, जो कि डिसाइड तुम्हें करना होगा, ठीक है? मैं रब इट ऑफ। Yes, ma'am. Now, do one thing. Hurry up, all the children. I am giving one question. You don't have to draw the ogive. You will practice later on at your home. But let me know whether you have followed how to solve cumulative frequency less than or more than. ये कैसे find out करते हैं? तुम लोग इसको बताना तो मुझे कि तुम लोग इसको कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। तो लिखो, तो क्वेश्चन लिखो। 0 to draw 2 columns, and in first one write the marks of the student. Write the marks. Write down the first class. 0 to 20, 20 to 40, 40 to 50, 40 to 50, 50 to 60. एक मिनट, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, and last is 80 to 100. Last is 80 to 100. Okay? Clear? Yes, ma'am. Write the next. In next column, write number of student. Number of student. First is 40, 40. Next is 51, 51. Next is 64, 64. Next is 38. Next is 38. And last is 7. Last is 7. Okay. Write down less than class, more than class, and find their cumulative frequency. Hurry up. अनिकेत बार बार क्लास से मूव कर जा रहा है। Have you got the answer? Less than का CF आया? Less than का CF आया? Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है। कितना? Ma'am, हो गया, ma'am. first is 40, हाँ, second 91, हाँ, third 155, हाँ, fourth 193, हम्म, and last 200. लास्ट इज 200। चलो बाकी बच्चे बोलो तो कितना कितना आया? सारे बच्चे एक साथ जरा बोलो तो। फर्स्ट वाला, Ma'am, 40, सेकेंड, 91, थर्ड, 91, फोर्थ, 155, 193,
लास्ट 200. चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो, मोर देन का आंसर निकालो कितना होगा। मुझे पाई चार्ट भी बताना है, हरी अप। जिज्ञासा, आ गया आंसर, हरी अप। मैम फर्स्ट में मोर देन वाले में 300 होगा। 300 नो, सॉरी more than 0, all values are more than 0, then plus 40 plus 51 plus 64 plus 38 plus 7, how much it is? सारे मैम हम 24 हाँ, सारे फ्रीक्वेंसी को प्लस करो तो कितना आएगा? मोर देन 0, मोर देन 0 में तो सारा आएगा, सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करो। रिया सिंह, हर्षराज, how much it is? More than 0 में 40 plus 51 plus 64 plus 38 plus 7, क्योंकि more than 0 200. 200 मैम। हाँ कितना? 200 होगा. 200 200. yes yes, okay, more than 20 में, more than 20 में 20 के बाद 193 हाँ नो, 160. मैम हाँ बोलो, more than 160. 160 यस, 160, क्योंकि मोर देन 20 में उसके बाद का फ्रीक्वेंसी पूरा ऐड करो, मोर देन 40 में उसके बाद का फ्रीक्वेंसी ऐड करो, मोर देन 20 में 160, मोर देन 40 में यस, मैम 5. हाँ हाँ कितना? 5. 109, मैम मोर देन 16 में 109, मोर देन 80 में 45 एंड मोर देन 100 में 7। नहीं सुनो सुनो, मैं शुरू से बता दे रही हूँ, मोर देन 0 200, मोर देन 20 160 160, मोर देन 40 109, मोर देन 60 45, मोर देन 80 7, मोर देन 100 0, मोर देन 100 0। समझ में आई बात? बात समझ में आई? यस मैम। अच्छा चलो ठीक है, बात समझ में आई। और तो तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है क्या इसमें? एक और प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूं क्या? एक और प्रैक्टिस के लिए चाहिए? हो गया मैम. हो गया, नेक्स्ट दे दें आप पाई चार्ट बता Yes, देते ma'am. हैं, ठीक है चलो। यस मैम। Let's see how to construct a pie chart. Have you studied this pie chart in previous class or not? Have you studied in previous classes in 9, 10, or in class 8? I think it is given in class 9 or in class 8. ये क्लास 8 में मैथ्स के बुक में शायद था, जहां तक मुझे याद है। Our topic is pie chart or the pie diagram. Okay, it is also called circular diagram. Write its another name. It is also called circular diagram. It is also called circular diagram. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं करना क्या, ठीक है। Values which will be given to you, it may be 30, it may be 90, it may be 170. It is not very important to see the or to become serious for that values. जो भी वैल्यू तुम्हारे सामने लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट इट्स परसेंटेज, ठीक है। इफ इन एन एग्जामिनेशन percentage is given, then it's okay,
But if percentage is not given of that value, first step is to find out the percentage. यहाँ पर मान लो दिया हुआ है food items, यहाँ पे लिखा हुआ है food, यहाँ पे लिखा हुआ है fuel, यहाँ पे लिखा हुआ है cloth. Suppose, ठीक है, यहाँ पर इसका वैल्यू लिखा है x, y, z, ठीक है, ये मान लो इसका एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है x, y, z, 30, 40, 30. Suppose, first of all, to construct pie chart, you will find out its percentage. मैं पहले बता दे रही हूँ स्टेप, फिर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, फिर मैं ड्रॉ करके बताऊंगी उसको. सबसे पहले इसका परसेंटेज निकालोगे. हाउ टू फाइंड आउट इट्स परसेंटेज? क्या करोगे? इन तीनों का सम कर दोगे, इन तीनों का सम कर दोगे, ठीक है, सम कर दोगे. इसके बाद कितना x डिवाइडेड बाय 100, जो भी आएगा वैल्यू, जो भी होगा वैल्यू, x डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, इसका परसेंटेज, y डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, परसेंटेज आ जाएगा. z डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, वो उसका परसेंटेज आ जाएगा. ठीक है, बात समझ में आई? मान लो यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 30, सपोज यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है. मैं एक इमेजिनरी वैल्यू ले रही हूँ, ठीक है. सबसे पहले क्या करोगे? इसका सम कर दोगे, तो इसका सम आएगा 100. मैंने जानबूझ करके अभी सिंपल वैल्यू लिया है. सबका सम कर दोगे. सम करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे परसेंटेज निकालोगे. कैसे? 30 डिवाइडेड बाय टोटल यानी 100 into 100, it will be 30 again. मैं दूसरा वैल्यू दूंगी, दूसरा आएगा, लेकिन अभी यहाँ पर मैंने सिंपल एग्जांपल लिया. फिर 30 डिवाइडेड बाय 100 into 100, इसका परसेंटेज 30 आ गया. फिर 40 डिवाइडेड बाय 100 into 100, फिर इसका परसेंटेज 40 आ गया. ठीक है, 30 30 40. अब इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें हम लोग लिखेंगे डिग्री. इसका लिखेंगे कितना डिग्री आता है, डिग्री. ठीक है, और तुम्हें पता होगा कि जो सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है. ठीक है, तो 360 डिग्री के लिए सबसे पहले 30 into 3.6, यहाँ डिग्री उसका आ जाएगा. 30 into 3.6, इसका डिग्री आ जाएगा. 40 into 3.6, उसका डिग्री आ जाएगा. ठीक है, by 3.6, y multiplied by 3.6, क्योंकि हाँ, क्योंकि जितना परसेंटेज है उसका 360 डिग्री के अंदर कितना प्लेस आएगा, कितना शेयर आएगा. तो हर बार मल्टीप्लाई करोगे 360 डिवाइडेड बाय 100, 30 into 360 डिवाइडेड बाय 100, 40 into 360 डिवाइडेड बाय 100. इतना लंबा चौड़ा काम क्यों करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? जितने वैल्यूज है परसेंटेज में उसको 3.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे. यू विल गेट इट्स शेयर इनसाइड द सर्किल, इनसाइड द सर्किल. ठीक है, फिर जब इसको ड्रॉ करना होगा तो सर्किल में उसका एंगल दे करके ड्रॉ कर देना. ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे दूं, मैं क्वेश्चन दूं. चलो ठीक है, यहाँ लिखो इन 2011, देखो इन 2015, इन 2015-16, इन 2015-16 GDP by industry, GDP by industry is as given below, is as given below, is as given below. Present this information in the form of a pie diagram, in the form of a pie diagram. Written, लिख लिया रिया? Ayush Raj, you are the new student? Yes, ma'am. Okay.
Now make two columns. In first column write primary. In first column, name of the first column is sector. Name of the first column is sector. Ayush Roy, you are from DAV Khagol or from any other school? I'm from DAV Hall, ma'am. You are from which school, Ayush? DAV Khagol, ma'am. Oh, you are from DAV Khagol. Okay, ठीक है. Then you might be knowing me. Face तो ध्यान में होगा ना कि मैम स्कूल में Yes, ma'am. Yes. है. चलो ठीक है. I will tell you about the books. Which book you have to buy in class 11? I will tell you. Okay. पहला तुम लोग लिखो प्राइमरी. सेकंड में लिखो सेकेंडरी. थर्ड में लिखो ट्रांसपोर्ट. सेक्टर वाले कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, सेक्टर वाले कॉलम में प्राइमरी सेकेंडरी. नेक्स्ट लिखो ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट लिखो फाइनेंस. 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 लास्ट सोशल सर्विसेज. लास्ट इज सोशल सर्विसेज. ओके. राइट डाउन इन नेक्स्ट कॉलम परसेंटेज. परसेंटेज शेयर. परसेंटेज शेयर. और पता है इसमें क्या है? इस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यू निकाल के दिया हुआ है परसेंटेज का. यू नीड नॉट टू फाइंड आउट इट्स परसेंटेज. पहला लिखो 16.2. 16.2. सेकेंड 25.4. 25.4. थर्ड 27.5. 27.5. Next 18.1. 18.1. And last is 12.8. Last is 12.8. Hurry up. Find out its degree. इसका डिग्री निकालो. सारे बच्चे एकदम आराम से. Have some patience. And we have 7 minutes now. I think within 2 to 3 minutes you can solve its degree. इसका जो डिग्री निकाल के बताओ तो कितना कितना आ रहा है. फर्स्ट इज 16.2. इसका कितना आया? मल्टीप्लाइड बाय 3.6 करने से multiplied by 3.6 only. Harshit, multiplied by 3.6. Ma'am, 58.32. 58, 58, yes. First is 58.32. 58.32, not 32. Decimal के बाद 32 बोला जाता है, 32 नहीं बोला जाता है. Yes, it is right. First, second. Nishchay, second. Ma'am, 91.44. Yes, good. 91.44. Third. Third is 99. yes. 99. Third is 99 degree. Third is 99 degree. All are in degree. Fourth is 65.16. 65.16. 65.16 degree. Okay. Last 46.8. 08. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 46.08. 46.08. Yes, it is right. I hope you haven't taken the help of your cell phone. Okay. लेकिन मुझे पता है कि 3.6 करने से ये बहुत आराम से आ जाएगा. कोई बात नहीं, चलो ठीक है. अब इसके बाद इस डिग्री को हम लोग सर्कुलर फॉर्म में शो करेंगे. ठीक है. 58.32 डिग्री. 58.32 डिग्री कितना होगा? थोड़ा सा से कम होगा. 91.4. फिर कंपास में सेंटर को यहाँ पर ले आओगे. ठीक है. कंपास के सेंटर को यहाँ पर ले आओगे बीच में. फिर वहां से 91.44 डिग्री देखना. वो कितना होगा? 91.44 कितना होगा? 90 डिग्री से ज्यादा. तो मैंने स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर दिया. इससे ये हो गया. फिर 99 डिग्री. 99 का मतलब कितना होगा? 99 का मतलब कितना होगा?
65 कितना होगा, जो बचा वो 46.8 डिग्री होगा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलर पार्ट डायग्राम विल बी शोन। हाँ, लेकिन इसके अंदर में डिग्री को शो करना होगा, डिग्री को या परसेंटेज को। ऐसे बहुत से बुक में इसके अंदर डिग्री लिखा हुआ है, बहुत से बुक में इसका परसेंटेज लिखा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर परसेंटेज है तो पहला परसेंट कितना है 16.2, ये 16.2 है। नेक्स्ट वाला था परसेंटेज में 25.4, तो 25.4 हो गया। नेक्स्ट इज 27.2 होगा। नेक्स्ट इज 27.5, तो 27.5 है परसेंटेज। नेक्स्ट इज 18.1, ये 18.1% है। एंड लास्ट इज 12.8, ये 12.8% है। ठीक है, इट इज कंप्लीटेड, बट try to make some pattern for every section. For every section make some pattern. इसको ग्रीन कलर से कर देना, इसको रेड से कर देना, इसको ब्लू से कर देना, इसको येलो से कर देना और इसको व्हाइट छोड़ देना, व्हाइट छोड़ देना। ठीक है, और इसके बाद एक लास्ट मेक एन इंडेक्स, मेक एन इंडेक्स हियर। रेड कलर का जो है वो फूड है, रेड कलर का जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, ये प्राइमरी है। जो ब्लू कलर का था ये सेकेंडरी सेक्टर का था। जो ग्रीन कलर का सेक्शन जो मैंने कलर किया वो कौन सा है सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। ठीक है, और इस तरह से सारे सेक्शन को कलरिंग करके यहाँ पर इंडेक्स दे देना, कंप्लीट। ओके, द चैप्टर इज ओवर, द चैप्टर इज ओवर। ओके, ये समझ में आ गया बात तुम लोगों को क्या? यस मैम। ओके, यस मैम। यस मैम। तो पीएससी के क्लास में मिलते हैं उस समय। जो नए स्टूडेंट हैं नंदिता और आयुष राज, इन दोनों को बुक के बारे में मुझे बताना है। ठीक है, ओके बाय, वी विल मीट इन पीएससी क्लास। बाय मैम।